So good afternoon, good evening to everyone. So in today's class, we will start our discussion. We will continue our discussion on surface area and volume. Surface area and volume पे हम लोगों ने काफी चीजें पढ़ी हुई हैं, काफी चीजें नहीं पढ़ी. बेसिकली हम लोगों ने पिछले क्लास में पहले तो ये समझने की कोशिश की थी कि सर व्हाट इज दिस एरिया, ये एरिया क्या होता है. और उसके बाद हमने ये समझा था कि सर व्हाट इज दिस वॉल्यूम. फिर हम बात कर रहे थे कि सरफेस एरिया क्या होता है. सरफेस एरिया, जो सरफेस हमें दिखता है उस सरफेस का एरिया इज कॉल्ड द सरफेस एरिया. मेरा ये जो सिर का ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है बिटवीन द हेयर्स एंड above, below the hair and above my specs, this surface will have a different area. This hair, ये जो सिर का पोर्शन है that contains the hair, that will have a different area. तो अलग अलग सरफेस का अलग अलग एरिया होता है. और ओवरऑल अगर मैं देखूं तो माय फेस लुक्स लाइक ए स्फीयर. हम लोगों ने दो सरफेसेस की बात की थी. वी टॉक्ड अबाउट क्यूब एंड क्यूबॉइड. मैंने आपको ये भी बताया था कि क्यूब इज ए फैमिली दैट लिव्स टुगेदर एंड इज ए happily settled family. What I mean by this line is, in a cube all the three dimensions are equal. That is, length is equal to breadth is equal to height. Whereas in a cuboid, length is not equal to breadth and is not equal to height. Fine. Then we calculated different things. That is, first of all, we saw what is the total surface area of a cuboid. So the total surface of a area of a cuboid is twice of the product of length into breadth plus breadth into height plus height into length. Then we discussed about the lateral surface area or area of the four walls भी आप कह सकते हो. It is equal to 2 times of b into h plus h into l. इसको आप ये भी कह सकते हो height multiplied by perimeter of the base. Perimeter of base भी आप इसको कह सकते हो if you want. Then the next thing was volume of cuboid. Volume of cuboid is nothing but area of base multiplied by height, which is equal to L into B into H. Next is length of the diagonal. Diagonal का length मतलब इस point से लेके इस point तक अगर मैं किसी rod को रखूं, what will be the length of that rod? So the length of that rod will be equal to square root of L square plus B square plus H square. So this is what we have already discussed in this. Then next we discussed about the cube को जैसे मैंने आपको बताया था, the only difference, the basic difference between the cube and the cuboid is, in a cube the length is equal to breadth is equal to height. That's it. That is the only difference between the cube and the cuboid. यहाँ पे चीजें थोड़ी सी चेंज हो जाएगी. Total surface area of a cube is equal to 6x square. बहुत अच्छी बात है सर. Then what will happen? The lateral surface area of the cube will be equal to 4x square. Brilliant, very good sir. Then next is the volume of the cube will be equal to x cube, which is equal to x square multiplied by x. Okay, very good, thank you. And the last thing that we have to study is the length of the diagonal of a cube. The length of the diagonal of a cube is square root 3 times of x. नेक्स्ट इज, उसके बाद हम लोगों ने कुछ सॉल्व्ड एग्जांपल्स डिस्कस किए थे. दिस वाज एग्जांपल नंबर 1 दैट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. 3 क्यूब्स आर प्लेस्ड एडजेसेंटली इन ए रो. और उसके बाद आपको टोटल सरफेस एरिया का एक रेशियो बताना था. the basic difference with which I used to solve the question and the way with which some of you solved the question, brilliant. In fact, you guys taught me also one very important thing. So the idea was very simple. 3 क्यूब्स हैं, अगर 3 क्यूब्स को एक साथ रखोगे तो it will become a cuboid. Cuboid है तो अब एक बार the dimensions of the cuboid will be equal to 3l, l and l, and the dimensions of the cube are equal to l, l and l. So the total surface area of the cube comes out to be 18l square, whereas the total surface area of the cuboid comes out to be 14l square. दोनों का रेशियो निकाल लो, you will get the answer. अब सर आपको याद कैसे है? क्या हमें भी इसको इस तरीके से याद करना पड़ेगा? नहीं, आपको इस तरीके से कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है. Since this question was very close to me, this question taught me some few things. That is why I have kept this question. That is why I by hearted this question. इसलिए मेरे को याद हो गया. इतना तो कर सकता हूँ यार.
ठीक है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एक कोई कमरा था, उस कमरे की दीवार, उस कमरे को हमें पेंट करना था, एंड उसमें वी आर नॉट सपोज, वी वेयर नॉट सपोज टू पेंट द खिड़की एंड द दरवाजा ऑफ द कमरा। सो एंड व्हाट, सो इस क्वेश्चन में एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन एक बच्चे ने पूछा था कि सर, व्हाई वी आर नॉट कंसीडरिंग the length and breadth part, why we are not considering the length and breadth part, why we have removed this. So my dear friend, while calculating the walls, you are not, walls में आपका floor और ceiling नहीं आता है। ग्राउंड वाले पार्ट को आप फ्लोर बोलते, इट हैज ए स्पेसिफिक नेम कॉल्ड फ्लोर, और टॉप वाले पार्ट को आप सीलिंग बोलते, इट हैज ए स्पेसिफिक नेम कॉल्ड सीलिंग। सो द टू थिंग्स कैन नॉट बी इंटरचेंज, फ्लोर सीलिंग नहीं बन सकता, सीलिंग फ्लोर नहीं बन सकता, द टू थिंग्स कैन नॉट बी इंटरचेंज। दैट इज व्हाई हियर आई हैव नॉट कंसीडर्ड L into B। फर्दर जब मैं अपना घर पेंट कर रहा हूँ, जब अपने क्लासरूम को पेंट कर रहा हूँ, सो आई विल नॉट बी कंसिडरिंग द एरिया ऑफ द 4 walls and the area of the 3 windows and the area of the दरवाजा। ये दोनों चीजों को मैं कंसीडर यहाँ नहीं करूंगा। So this was about the surface area and the volume. The next question was the dimension of a cinema hall are this, how many persons can sit. Okay, now this is a very interesting question, but I will solve this question for you, because you can solve this question on yourself also. The dimension of a cinema hall are 100 into 50 into 18. That means this cinema hall is a cuboid. अब बोल क्या रहे हैं कि how many persons can sit in the cinema hall if each person requires 150 मीटर क्यूब ऑफ द एयर। देखो टोटल नंबर ऑफ पर्सन मतलब, देखो आप प्रैक्टिकली सोचे इस क्वेश्चन को। जब मैंने पहली बार इस क्वेश्चन को सोचा तो मुझे नहीं समझ में आया कि मुझे वॉल्यूम निकालना है कि एरिया निकालना है। हाउ, जब मैं नहीं समझ पाया तो हाउ ए क्लास 9th student is expected to understand whether I am required to calculate it. क्या बोल रहे हो बेटा? Okay, fine. Then let me explain. जब मैं इस चीज को नहीं समझ पाया, then how a class 9th student is expected to understand whether I will calculate area or I will calculate volume. तो इस चीज को समझने के लिए just imagine a practical situation. आप एक कमरे में हो, ठीक है, आप एक कमरे में हो, यू आर फीलिंग वेरी इजी एंड यू आर फीलिंग वेरी, आपको ऑक्सीजन वगैरह मिल रही है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, आपको घुटन नहीं हो रही है। लेकिन मान लो उसी कमरे में अगर 1000 लोगों को भर दिया जाए तो यू विल स्टार्ट feeling suffocation. Why you will start feeling suffocation? Because the amount of क्योंकि वही amount of air बहुत ज़्यादा, because the amount of oxygen in the room will decrease. So here, तो इस practical experience के हिसाब से बेटा, you should realize here that you are required to calculate the volume in this question. तो पहले वॉल्यूम निकालो, वॉल्यूम निकाल के आपको ये पता चलेगा कि इस कमरे में, इस सिनेमा हॉल में इतने पर्सन्स के लिए एयर सफिशिएंट है। फिर आप क्या करोगे, इतने पर्सन्स के लिए सफिशिएंट है, एक पर्सन 150 मीटर क्यूब एयर को कंज्यूम करता है, टोटल नंबर ऑफ पर्सन्स कितने होंगे, दैट यू कैन कैलकुलेट। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन विल बी इक्वल टू 600। The correct answer of this question will be equal to 600. Now अब आप पूछोगे कि सर आपके पास कहीं कोई सॉल्यूशन लिखा हुआ है क्या, आपने बिना पेन को यूज किया आपने कैसे सॉल्यूशन बता दिया? How you gave the answer very quickly, sir? आपने ये क्या किया सर? मेरे को तो नहीं समझ में आया। कोई बात नहीं, मेरे को भी नहीं समझ में आता था जब मैं छोटा था। तो मैंने क्या किया बेटा, what I have done here is I have not multiplied these three terms. मैंने इसको 100 into 50 into 18 लिख दिया और इसके बाद मैंने इसको 150 से डिवाइड कर दिया। अब दो तरीके हैं, या तो इसको मल्टीप्लाई कर दो या तो यहाँ से कुछ सिंप्लीफाई करने की कोशिश करो। जब मैंने इसको देखा तो पहली चीज जो मेरे दिमाग में आई वो ये आई, okay, 600%. So this is how I calculated the answer of this. So this is how I calculated the answer of this question, that the total number of persons in this class in this cinema hall will be equal to 600. Okay, so this is how I calculate. Calculation also can be done in your minds.
Yeah, this can Like, be. This can be done in. You can do this question orally. There is no need to touch your pen. There is no need to touch your pen. अब देखो एक बड़ा अच्छा सा क्वेश्चन आता है. अब प्लीज किसी के माइक में कुछ वाइब्रेशन है, प्लीज अपना माइक म्यूट कर लो. Now, here is a very interesting question. The outer measurement of a closed wooden block are 42 multiplied by 30 multiplied by 27 centimeter. Okay. If the box is made up of 1 centimeter thick wood, I have to calculate the capacity of the box. The time allotted for this question is 1 minute. Please try the question. Please be honest to yourself and solve the question. If you get it, it's nice. If you don't get it, I'm here to tell you. But the point is, please be honest with yourself. If you won't be honest with yourself, how I will come to know what is the problem? ठीक है, चलो. Done. तो done तो wait. सर ये चैट डिसेबल हो गई. Chalo, first of all, I will explain the question. Then I will tell you a very pertinent mistake that one of you has done. Actually, two of one. Today time is running so fast. Okay, we will stop the time. We will stop the time. We will. I will take your extra class. ठीक है. I'll take your extra class. ठीक है. Then I will tell you a very silly mistake that one of you has done. In fact, two of you has done, but एक ने जो किया वो तो बहुत ही बड़ी silly mistake है. Actually, it's not a silly mistake, but yes, it is a mistake. In my views, जहां से मैं देख रहा हूँ, it is a silly mistake. जहां से आप देख रहे हो, वहां से वो सिर्फ और सिर्फ एक mistake है. ठीक है. चलो. अब इस क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने के लिए ये देखो मेरा मोबाइल फोन देखो. दिस इज अ मोबाइल फोन. ठीक है. इसमें एक कवर लगा हुआ है, ये आप लोग को पता है. अब इस मोबाइल फोन में क्या हो रहा है बेटा कि मोबाइल फोन है, ये जो कवर है ना, इस कवर की थिकनेस है आपके क्वेश्चन के हिसाब से 1 सेंटीमीटर, और मेरे को इस वाले पोर्शन का जो मोबाइल फोन का पोर्शन है उसका मेरे को वॉल्यूम निकालना है. इफ आई ट्राई टू रिप्रेजेंट दिस ग्राफ, if I try to represent this question on a 2 dimension, I am just representing the 2 dimension. So the question is like this. The question is like this. There is a box. ठीक है. एक बॉक्स है, ये आउटर पोर्शन ऑफ द बॉक्स है, या इसको बोल लो ये इनर पोर्शन ऑफ द बॉक्स है. यहाँ पे थिकनेस जो दी हुई है बेटा वो 1 सेंटीमीटर की दी हुई है. यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर है, वहां यहाँ पे भी 1 सेंटीमीटर है, और ये जो टोटल लेंथ है ना बच्चा, ये कितनी दी हुई है 42. द सेम केस इज हैपनिंग फॉर ब्रेड्थ एंड हाइट. तो एक केस को एनालाइज करते हैं, लेंथ वाले केस को एनालाइज करते हैं, बाकी के लिए सिमिलरली लिख के अपन आगे बढ़ेंगे. अब देखो, अब मेरे को इस पोर्शन का वॉल्यूम निकालना है. यही क्वेश्चन दिया हुआ है कि आउटर डायमेंशन दी हुई है, थिकनेस 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है. अब 1 सेंटीमीटर थिकनेस तो बेटा दोनों साइड में होगी ना, इधर भी 1 सेंटीमीटर थिक, इधर भी 1 सेंटीमीटर थिक. सो द इफेक्टिव बॉक्स, जिस बॉक्स में आपका सामान रखेगा, वो बॉक्स की लेंथ हो जाएगी 42 माइनस 2 इंटू 1 विल बी इक्वल टू 40. ये जो लेंथ होगी ना बच्चा, ये लेंथ 40 होगी. सिमिलरली द ब्रेड्थ विल बी इक्वल टू 28 एंड द हाइट विल बी इक्वल टू 25. कैसे है सर 25? कैसे सर? 27 माइनस 2 which is equal to 25 and 30 minus 2 which is equal to 28. Fine. Okay. ये बात आपने कैलकुलेट कर ली. अब आपको वॉल्यूम बताना है, तो वॉल्यूम बताने के लिए अब देखो मैं आपको वही बता रहा हूं बार बार कि कैसे आप अपनी कैलकुलेशन को फास्ट कर सकते हो. कैलकुलेशन को फास्ट करना बहुत जरूरी है. आपको वॉल्यूम निकालना है, आपको प्रोडक्ट निकालना है 28 मल्टीप्लाइड बाई 40 मल्टीप्लाइड बाई 25 का. अब ये प्रोडक्ट आप कैसे निकालोगे? सबसे पहले आपको ये पता है 25 फोर जा कितना होता है 100.
25 4 100 होता है, ये बात हम बचपन से सीखते आ रहे हैं। तो 25 into 40 will be equal to 1000 और 28 into 1000 will be equal to 28,000. So the correct answer of this question will be equal to 28,000 centimeter cube. ठीक है, अब मैं आपको एक बात बताता हूँ. One of you had given the answer as 30,000 centimeter cube. I wish it is a typing error, but even if it is not a typing error, तो मैंने क्या बोला था कि मैं जहां से देख रहा हूँ, it is a silly mistake. Why it is a silly mistake, my dear friend? क्योंकि एक जगह आपको 28 मिला, एक जगह आपको 40 मिला, एक जगह आपको 25 मिला. आई एम एज्यूमिंग दैट जिस भी बच्चे ने वो आंसर दिया है उसने ये लेंथ ब्रेड्थ और हाइट करेक्ट निकाली होगी. तो अब यहां से जब मैं देख रहा हूं तो बेटा 28, 40 और 25 का प्रोडक्ट किसी भी जिंदगी में, दुनिया के किसी भी कोने में 30,000 नहीं हो सकता है. That is the only mistake that you have done. Why this mistake? क्यों मैं इतने कॉन्फिडेंस से बोल सकता हूं? क्योंकि यहाँ देखो ना, 40 into 25 कितना आ रहा है? 1000. और 28 को जब मैं 1000 से गुना करूंगा तो मुझे कितना मिलेगा? 28,000. 28 को 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 280 मिलेगा, 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2800 मिलेगा, और 1000 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 28000 मिलेगा. कहां से ये 30 हो गया भाई? That is why I said that was a very silly mistake in my eyes, not in your eyes, but in my eyes. ठीक है. एक और आंसर आया था. That answer is, I don't know how he calculated, how he or she calculated. So I don't know about the logic behind that question, that approach. But yes, that answer was also wrong. But rest all of you have given the correct answer. ठीक है. Okay, so before proceeding further off, by the application of algebra that we did few days back, देखो सबसे पहले जो चीजें लिखी हुई हैं वैसे उसको लिख लेते हैं. We will start with RHS. RHS से अपन स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे they are talking about total surface area. So S is equal to 2 multiplied by AB plus BC plus CA. ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे किसी को नहीं होनी चाहिए. Now my RHS will be equal to 2 multiplied by 2 times of AB plus BC plus CA multiplied by 1 upon A plus 1 upon B plus 1 upon C. अब भैया मेरी बात सुनो, ये 2 से 2 तो कैंसिल कर दूं, किसी को कोई समस्या तो नहीं है यहाँ पे? एनीबडी हैज एनी प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं है. दूसरी चीज ये हो गया 1 अपॉन ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए. अब बेटा यहाँ पे जब तीन फ्रैक्शंस को ऐड करते हैं तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले एलसीएम लेते हैं. तो इन तीनों का एलसीएम क्या होगा? a इंटू बी इंटू सी. ये a है, इसको ABC बनाने के लिए न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को BC से मल्टीप्लाई कर दो. BC यहाँ पे AB हो गया, यहाँ पे CA हो गया. अब इसको और इसको भगवान बजरंग बली का नाम लेके कैंसिल कर दो. फाइनली व्हाट यू गॉट? 1 अपॉन ABC, which is nothing but 1 upon volume V. So these steps I did orally. Finally your LHS is equal to RHS. खत्म सवाल. कहाँ प्रॉब्लम है? कहाँ प्रॉब्लम है? क्या दिक्कत है? क्या नहीं आता था? क्या टोटल सरफेस एरिया नहीं आता था, या फ्रैक्शंस को ऐड करना नहीं आता है? दोनों चीजें आती हैं, लेकिन क्यों नहीं सवाल हुआ? इसलिए नहीं हुआ बेटा क्योंकि जब आपने सवाल देखा ना तो आपके दिमाग ने, आपके हैंड ने, आपके आंखों ने, जब आप सवाल देखा तो आपके दिमाग ने एक सिग्नल जनरेट किया और आपके दिमाग ने ये बोला कि यार ये क्वेश्चन तो टफ लग रहा है, क्योंकि इसमें एस भी है, वी भी है, ए भी है, बी भी है, सी भी है, पता नहीं क्या क्या है, क्वेश्चन टफ है. और देख लो ना कितने स्टेप में खत्म हुआ. 1
2 3 3 स्टेप में खत्म हुआ, आपके सामने किया है। सर हाँ बोलिए, मैंने एक दूसरे मेथड से किया है। कैसे किया बताइए। सर पहले हमने वॉल्यूम का फॉर्मूला लिखा V इज इक्वल टू ABC। ओके फिर हमने S की टोटल सरफेस एरिया है उसका भी फॉर्मूला लिख लिया 2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस CA। ठीक है, फिर हमने वॉल्यूम है उसका रेसिप्रोकल कर दिया, मतलब जो 1 V इज अपॉन इक्वल टू ABC A। हो गया। तो फिर हमने क्या किया कि 1 अपॉन V को S से मल्टीप्लाई कर दिया और 1 अपॉन ABC को 2 टाइम्स AB प्लस BC प्लस CA से मल्टीप्लाई कर दिया, तो वो दोनों इक्वल हो गए। इक्वल आ गए। सी the there is no problem with this this approach, but what I am saying is आप LHS को कुछ करके आप you are taking LHS to some value, RHS को आप किसी वैल्यू तक लेके जा रहे हो, then you are saying your method is somewhat longer। आपने LHS में थोड़ा सा ऑपरेशन किया, आपने बोला कि नाउ फाइनली माय LHS इज कमिंग आउट टू बी दिस। आपने RHS में कुछ ऑपरेशन किया, यू सेड दैट माय RHS इज कमिंग आउट टू दिस। नाउ सिंस बोथ द क्वांटिटीज आर इक्वल, देन यू आर सेइंग दैट माय LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। आई एग्री विद इट। 10th स्टैंडर्ड में ट्रिग्नोमेट्री में कुछ क्वेश्चंस ऐसे आते हैं NCERT में, जहां पे हम ये काम करते हैं। बट इफ यू कैन डू इट simpler, if you can make it simpler, then you can do like this. You do like that in the exam, I don't have any issue, but this method I mean you can also do it like this, you can also do it like this, so it won't have any problem. Yes Aditi, your method is perfectly all right, your method is perfectly all right. Transposition means S को इस तरफ लेके जाना और उसके बाद फिर प्रूव करना है, that is called a transposition। ठीक है, so okay, so whatever the way with which you did the question, that is also correct, no problem, I don't have any issue with it, you can do it in exam, but just try कि आपका जो मेथड हो वो थोड़ा सा छोटा हो, the smaller it is the better it is। okay, just try that it is more simpler, क्योंकि ज्यादा लंबा होगा तो there are chances that you can miss some steps। ठीक है, चल okay, 3 cubes with of metal with edges 3 centimeter, 4 centimeter and 5 centimeter are melted to form a single cube. Find the lateral surface area and the volume of the new cube form। जल्दी से करके बताओ, टाइम है आपके पास 2 मिनट, 1 मिनट का, आप भी करो मैं भी करता हूं, देखते हैं किसका आंसर आता है। लेटरल सरफेस एरिया कितना आ रहा है? See, I am straight away writing the answer। मैं आपके सामने बैठा हुआ, मैंने कुछ भी पॉज वगैरह नहीं किया और यहाँ पे कोई मैजिक नहीं हो रहा है। The lateral surface area will come out to be 144 and the total and the volume will come out to be 216। Is it the answer? Yes sir। Yes, so calculated. यस सर वही है। यही है। यही है? हाँ सर। मतलब इज इट द आंसर, मतलब क्या आप लोगों का भी वही आंसर आ रहा है, ये पूछ रहा है। यस हाँ सर, लेकिन सर हमने मेथड थोड़ा किया। और देख लो भाई, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैंने कुछ भी कहीं पे भी मैंने किसी भी कॉपी पेन का इस्तेमाल नहीं किया, मैंने डायरेक्टली आपके सामने कैलकुलेट करके आई जस्ट रोट 2 थिंग्स। कैसे कर लिया सर? अब कोई आप में से पूछेगा सर सीरियसली हाउ दिस इज पॉसिबल? आई विल मेक इट पॉसिबल। बस पॉइंट ये है, यू हैव टू ट्रस्ट मी, आई विल मेक इट पॉसिबल। 2 साल में मैं आपको ऐसा बना दूंगा कि आप यू विल बी द परफेक्ट, आप लोग परफेक्ट हो जाओगे।
बट द पॉइंट इज यू हैव टू रन विथ मी, मेरे साथ चलो, मेरे साथ वॉक करो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ दौड़ो, आई विल मेक यू परफेक्ट। देखो सर कैसे करेंगे। देयर आर 3 क्यूब्स, 3 क्यूब्स हैं मेटल के। इन तीनों क्यूब्स को आपने मेल्ट करके एक सिंगल क्यूब बना दिया। पहले इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं। ये बॉटल है, इसकी कैपेसिटी 1 लीटर है, ठीक है, थोड़ी देर के लिए मान लो इसकी कैपेसिटी 1 लीटर है। एक दूसरा बॉटल है, उसकी कैपेसिटी 2 लीटर है। मेरे पास एक बॉटल था, उसकी कैपेसिटी 1 लीटर थी। दूसरा बॉटल था, उसकी कैपेसिटी मान लो 8 लीटर थी। तीसरा बॉटल था, चलो अभी फिलहाल यही 2 बॉटल की बात करते हैं। दोनों बॉटल को मैंने मिक्स कर दिया। क्या किया मैंने? मिक्स करके इन दोनों के पानी को मैंने एक तीसरे बॉटल में भर दिया और तीसरा बॉटल मेरा पूरा का पूरा भर गया। तो व्हाट आई कैन से दैट द वॉल्यूम ऑफ द थर्ड बॉटल विल बी इक्वल टू 1 लीटर प्लस 8 लीटर विच इज इक्वल टू 9 लीटर। क्या इस पॉइंट में किसी को कोई गड़बड़ी है? क्या किसी के दिमाग में कोई प्रॉब्लम है कि ये पॉइंट अगर आपको नहीं समझ में आ रहा हो तो? क्या आप लोगों को ये बात समझ में आ गई कि द वॉल्यूम ऑफ द थर्ड बॉटल विल बी इक्वल टू 1 लीटर प्लस 8 लीटर विच इज इक्वल टू 9 लीटर। इज दिस कंसेप्ट क्लियर फॉर टू एवरीवन? जिसको प्रॉब्लम है वो प्लीज पूछ लीजिए। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एक क्यूब को मेल्ट करने, क्यूब को मेल्ट करने का मतलब इसके अंदर का जो भी मटेरियल है ना, उस मटेरियल को यूज करके हम एक दूसरा क्यूब बना रहे हैं, ठीक है। इट इज सिमिलर टू द केस वेयर बॉटल के पानी को आप एक तीसरे बॉटल में डाल रहे हो। तो क्यूब को जब आपने मेल्ट किया तो हमारा जो चौथा क्यूब बन रहा है, एक क्यूब ये था, एक क्यूब ये था, एक क्यूब ये था, इन तीनों क्यूब को आपने मेल्ट करके एक चौथा क्यूब बनाया। तो इसका सारा का सारा वॉल्यूम यहाँ पे आ गया। इसका वॉल्यूम, इसकी एज 3 सेंटीमीटर थी तो इसका वॉल्यूम 27 हो जाएगा। इसकी एज 4 सेंटीमीटर थी तो इसका वॉल्यूम 64 हो जाएगा। इसकी एज 5 सेंटीमीटर थी तो इसका वॉल्यूम 125 हो जाएगा। इन तीनों को जब मेरा चौथा क्यूब बन के तैयार होगा ना बेटा, उस क्यूब के बारे में मुझे एक ही इंफॉर्मेशन मुझे को पता है कि उस क्यूब का जो वॉल्यूम होगा, दैट वॉल्यूम ऑफ द क्यूब विल बी इक्वल टू 27 प्लस 64 प्लस 125। अब इस चीज को ऐड करने में टाइम मत लगाना, बहुत आसानी से ऐड कर सकते हो। कैसे ऐड करोगे सर? देखो ध्यान से, 64 और 27 को ऐड करना है। आप अगर मैं आपसे पूछूं 4 + 7 कितना होता है तो आप आंख बंद किए बिना बोलोगे सर 11 होता है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं 64 + 27 कितना होता है, आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा ये बताने में कि सर इट इज 91। Why? Because you are not trained to add 2-digit numbers. आप 2-digit numbers को ऐड करने के लिए ट्रेंड नहीं हो। तो बेटा जब भी आपके पास फालतू का समय रहे, जब जिस समय को आप YouTube पे मूवीज देख के या आप गेम खेल के वेस्ट करते हो, उस टाइम को आप यूटिलाइज करो 2-digit एडिशन के लिए। मुझे इस एडिशन को करने में 5 सेकंड से ज्यादा नहीं लगेगा कि 64 + 27 इज इक्वल टू 91। मैंने इस तरीके से खुद को ट्रेन किया। कैसे ट्रेन किया सर? 60 + 20 इज 80, 7 + 4 इज 11, 80 + 11 इज 91। आई हैव ब्रोकन माय एडिशन इनटू 3 स्टेप्स और जिससे मेरे को रिजल्ट मिलता है। 125 + 91 इज 216। इस चीज को पहुंचने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगा। कैसे नहीं लगा सर? 125 + 100 विल बी इक्वल टू 225। 225 में से 9 को जब अगर मैं सब्ट्रैक्ट करता हूं तो आई विल गेट 216। सो आई कैन से दैट द कंबाइंड वॉल्यूम ऑफ दिस इज 216। अब जब मैंने 216 देखा, तो जब मैं 216 को देखूं या जब मैं 1728 को देखूं या जब मैं 729 को देखूं या जब मैं 1000 को देखूं वॉल्यूम के केस में, तो आई शुड फील वेरी हैप्पी। जब मैंने 216 को देखा तो मेरे दिमाग की घंटी बजी और दिमाग ने हैंड को एक सिग्नल दिया और दिमाग ने बोला इसका मतलब जानते हो दया? इसका मतलब ये है कि द एज और एल इज 6 सेंटीमीटर्स। ठीक है, यहां तक कर लिया। अब इसके बाद अगर कोई गलती करेगा तो भाई उसका भगवान मालिक है।
जो गलती होने के चांसेस है वो यही तक थे, इसके बाद में कोई गलती होने का कोई चांस होता नहीं है। Lateral surface area is nothing but 4 multiplied by L square, which is equal to 4 multiplied by 6 square, which is equal to 144. And total surface and the volume is 6 cube, which is equal to 216 centimeter cube. This is what I had written orally. This is what I want you guys to calculate. So the volume is equal to 216 centimeter cube, and the lateral surface area is equal to 144 centimeter square. This is how you guys are required to solve the questions. बात समझ में आई? हाँ कि ना? बोलो, आई कि नहीं आई? बोलो जल्दी. सर. Yes sir या no sir? Very good sir. Yes sir. चलो, अच्छी बात है. आज की क्लास में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि सी आई वांट यू गाइस टू कैलकुलेट लॉट, टू डू लॉट ऑफ क्वेश्चंस. हमारा सिर्फ एक चैप्टर बाकी है, इसके बाद सॉरी 2 चैप्टर बाकी है इसके बाद, स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी. कंस्ट्रक्शन लास्ट में करेंगे यार, फरवरी में करेंगे कंस्ट्रक्शन या जनवरी में करेंगे, उससे पहले नहीं करने वाले. एंड दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक. अगर ये टॉपिक ठीक से समझ में आ गया, नहीं आया बेटा तो परेशान हो जाओगे. इसलिए आई एम डूइंग द क्वेश्चंस विथ यू. दैट इज व्हाई आई एम डूइंग द क्वेश्चंस विथ यू. करो, साथ में करो, तुम भी करो, मैं भी करता हूँ. दिस क्वेश्चन इज सिमिलर टू द प्रीवियस क्वेश्चन. ए वुडन नाउ दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. ध्यान रखना इस बात को. व्हेन आई से द इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सो ओके, व्हेन आई से इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इसका मतलब यह है कि इसमें गलती होने के चांसेस है, याद रखना. एक वुडन ओपन बॉक्स है जिसका लेंथ है 80 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 65 सेंटीमीटर और हाइट है 45 सेंटीमीटर. इट इज मेड अप ऑफ 2.5 सेंटीमीटर थिक वुड. फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द वुड, कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स, वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड एंड वेट ऑफ द बॉक्स if the density is given to be this much. ठीक है, जल्दी से करके आंसर दीजिए मेरे को. Why there is difference in the answer? मोगैम्बो को दुखी कर रहे हैं आप लोग. अच्छा एक बात बताओ, पार्ट फर्स्ट का और पार्ट सेकंड का आंसर सेम होगा कि अलग अलग होगा? अलग अलग होगा. अलग अलग होगा सर. अलग ही होगा सर. अलग होगा. सर अलग होगा. अलग क्यों होगा भाई? सर. एक में बॉक्स की कैपेसिटी पूछी, एक में वुड का वॉल्यूम पूछा है. वॉल्यूम ऑफ, हाँ सर, कितना वुड यूज हुआ वो पूछा है सर. हाँ सर. ऑफ बॉक्स पूछा है, दूसरे में वॉल्यूम ऑफ वुड यूज्ड पूछा है. तो वॉल्यूम ऑफ वुड क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ वुड तो वही होगा ना जो बॉक्स की कैपेसिटी होगी. वॉल्यूम ऑफ वुड मतलब सर बॉक्स पूरा वुड का नहीं है. सर अलग अलग होगा वॉल्यूम. सर वैसा तब होता अगर पूरा बॉक्स ओपन ने मतलब. हाँ सर, पूरा बॉक्स वुड का बना होता तो होता. ओके, वेरी गुड. अब ये बताओ मेरे को, वॉल्यूम ऑफ वुड निकालने के लिए आप क्या कैसे कैलकुलेट करोगे? आई एम अनएबल टू विजुअलाइज दिस. मेरे को समझाओ, मुझे नहीं आता. मैं स्टूडेंट हूँ, आप लोग मेरे टीचर हो. बताओ मेरे को, मुझे नहीं समझ में आ रहा कुछ. सर एक बार सर इसमें एक बार एक्सटर्नल वॉल्यूम कैलकुलेट कर सकते हैं, उसके बाद इंटरनल वॉल्यूम माइनस कर देंगे कैपेसिटी. क्या एक एक करके बोलो ना. ओके पीयूष आप बताइए. हाँ सर पहले सर एक्सटर्नल वॉल्यूम कैलकुलेट करके इंटरनल वॉल्यूम से माइनस. इंटरनल वॉल्यूम की डायमेंशंस क्या होंगी?
सर लाइक उसकी लेंथ हो जाएगी 75 सेंटीमीटर, ब्रेथ हो जाएगी 60 सेंटीमीटर एंड हाइट वुड बी 42.5 सेंटीमीटर। 42.5 or 40? 42.5 Why क्योंकि ये ओपन बॉक्स है सर, सर, क्योंकि वो ओपन ओपन बॉक्स बॉक्स है है सर इसलिए। इसलिए। ओपन है। सर ओपन एक बॉक्स साइड है से 2.5 मीटर थी। तो बेटा ओपन बॉक्स है तो इससे उसका वॉल्यूम पे क्या फर्क पड़ेगा? सर एक डायमेंशंस साइड पे कम फर्क हो पड़ेगा, ऊपर से खुला है इसीलिए सर, एक एक तो साइड सेंटीमीटर कम होनी चाहिए। ऊपर से जो 2.5 कम होनी चाहिए हाइट, वो तो होगी ही नहीं ना, क्योंकि ऊपर तो है ही नहीं कुछ। यस सर। श्योर? यस सर। सर श्योर सर। पक्का? पक्का। हाँ हाँ सर। सर। Very good. Very good. Okay. So now you tell me what will be the capacity of the box? Will it be 18,000 or it will be something different? Sir, different. Sir, it is different. सर इट इज डिफरेंट। सर डिफरेंट होगा। क्यों? Why will it be different? Sir, because the answer you told is when we take 40 instead of 42.5. नहीं तो मैं 42.5 क्यों लूंगा, मैं 40 क्यों नहीं लूंगा? सर वही तो Because it सर is आपने open बताया from one बॉक्स end. ओपन। Because it is open from one end. Because the box is open from one end. So what I will do here is I will take the this answer that I calculated. Actually मेरे को यही लग रहा था कि कोई तो गलती करेगा यहाँ पे, but किसी ने गलती नहीं की. Very poor. आप लोगों से गलती करवाने के लिए मुझे कुछ और चीजें करनी पड़ेगी. I will have to do something else. See, the capacity, the situation here is little bit different. This is a box which is open from the top end. अगर ये इस बॉक्स की थिकनेस जीरो होती, अगर इस बॉक्स की थिकनेस जीरो होती तो हम डायरेक्ट लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट को मल्टीप्लाई कर देते और मुझे टोटल कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स मिल जाता और वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज्ड would have been same as the capacity of the box. But the condition here is यहाँ पे thickness भी दिया हुआ है plus the box is open from the top also. So here what will happen, my height will be 42.5, my length will be equal to 75 and my breadth will be equal to 60. So multiplying the three terms, I will get the volume, I will get the capacity of the box. इन तीनों को मल्टीप्लाई करके मेरे को मिलेगा कैपेसिटी ऑफ द बॉक्स. अगर मुझे वॉल्यूम ऑफ द वुड यूज निकालना है, so that will be equal to 80 multiplied by 65 multiplied by 45 minus 42.5 multiplied by 75 multiplied by 60. This will be the volume of wood used. अब वेट ऑफ द बॉक्स निकालना है तो ये जो भी आपका आंसर आया इसको 8/100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यू विल गेट द वेट ऑफ द बॉक्स इन ग्राम्स. Get the weight of the box in grams. See, I don't have the answer right now, so I'll check the answer and I'll get back to you. Calculate the question. इस क्वेश्चन को कैलकुलेट करना. इस क्वेश्चन के कैलकुलेशन में कुछ बहुत अच्छी चीजें मिलेंगी आपको. You will learn something here. सर आप एक बार बोल सकते हो ये हाइट 42.5 क्यों कैसे करी आपने? 42.5 बेटा इसलिए किया क्योंकि बॉक्स जो है वो ऊपर से खुला हुआ है. ठीक है, बॉक्स जो है ये ऊपर से खुला हुआ है. इस बॉक्स को अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो ये कुछ इस टाइप का बॉक्स है. यहाँ पे तो थिकनेस है 2.5 लेकिन ऊपर थिकनेस कुछ नहीं है. यहाँ पे ये बॉक्स खुला हुआ है ऊपर से, तो ऊपर में मैं 42.5 नहीं सब्ट्रैक्ट करूंगा. जो मेरा हाइट होगा ना, that will be nothing but 45 minus 2.5 which is equal to 42. ओके सर, अंडरस्टूड, समझ गया. ठीक है, चल. तो अब जो है
इस क्वेश्चन को आई एम गिविंग यू गाइस एज होमवर्क, इस क्वेश्चन को ट्राई करना and I will see the answer of this question and then we will discuss this question in the next turn also. This is a very good question. इसके कैलकुलेशन में आपको कुछ चीजें बहुत इंटरेस्टिंग मिलने वाली है, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट इस चैप्टर में, कैलकुलेशन पार्ट इज द मेन थिंग। अगर कैलकुलेशन पार्ट आपका वीक है तो इस चैप्टर के क्वेश्चंस आपसे कभी सॉल्व नहीं होंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सक्यूज मी सर, यस बोलिए बेटा। सर आप प्लीज बता सकते हैं कि आपको 60 और 75 कैसे आया था? 60 और 75 कैसे आया था? ओह वेरी गुड बेटा। मैंने क्या किया, 80 में से, ये लेंथ है ना 80, 80 में से, क्योंकि ये बॉक्स में लेंथ में इधर भी 2.5 का थिकनेस है, इधर भी 2.5 का थिकनेस है, सो व्हाट आई डिड, 80 माइनस 2 multiplied by 2.5 which is equal to 80 minus 5 which is equal to 75। ब्रेड्थ की मैं बात करूं तो ब्रेड्थ थी 65, 65 माइनस 2 multiplied by 2.5 which is equal to 65 minus 5 which is equal to 60, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर। यस सर, थैंक यू सर। चल आगे बढ़ते हैं। यस सर। ओके किसी को कोई डाउट है यहाँ तक तो भाई पूछ लो, नहीं है डाउट तो चलो सर सिलेंडर की बात करते हैं, ठीक है। चलो किसी को कोई डाउट नहीं है तो अपन सिलेंडर की बात करते हैं। सिलेंडर में भाई देखो वही तीनों चीजें होती हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, टोटल सरफेस एरिया होगा, वॉल्यूम होगा। क्या क्या चीजें होंगी सर? पहली चीज होगी कर्व्ड सरफेस एरिया, दूसरी चीज होगी टोटल सरफेस एरिया और तीसरी चीज होगी वॉल्यूम। द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू 2 pi r multiplied by h। प्रूफ की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, प्रूफ के पीछे मत पड़ना। The curved surface area of a cylinder is equal to 2 pi r multiplied by h। Very good। The total surface area of the cylinder will be equal to curved surface area plus area of circular top and bottom। कर्व्ड सरफेस एरिया ये वाला एरिया प्लस इस सरफेस का और इस सरफेस का एरिया which will be equal to 2 pi r h plus 2 pi r square that will reduce to 2 pi r multiplied by h plus r। This is the total surface area of the cylinder। Next is volume of cylinder। cylinder का volume क्या होगा? It will be equal to area of base multiplied by height। area of base का area क्या है सर? pi r square multiplied by h which is equal to pi r square h। The volume of cylinder will be equal to pi r square multiplied by h which is equal to pi r square into h। अब ये तो हो गया सॉलिड सिलेंडर की, अभी हम लोग बात कर रहे थे अभी तक। अब हम बात करते हैं हॉलो सिलेंडर की। हॉलो सिलेंडर का बेस्ट एग्जांपल होता है पाइप। तो आपके घर में अभी तो पता नहीं, आजकल तो कूलर्स हैव बीन रिप्लेस्ड बाय एयर कंडीशनर्स, लेकिन घर में क्यों? घर के सामने जो गार्डन है, उस गार्डन में जो पानी भरा जाता है, उस पानी को हम लोग जिस जिस चीज से वो फ्लो होता है उसको अपन पाइप बोलते हैं। पाइप इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हॉलो सिलेंडर। हॉलो सिलेंडर मतलब बीच में से उसमें से वाटर फ्लो करेगा और साइड में उसकी थिकनेस होगी। हॉलो सिलेंडर की हम बात अभी कर चुके हैं क्यूब के केस में, क्यूबॉइड के केस में। हॉलो क्यूबॉइड या हॉलो क्यूब हमने वहां पे नई टर्म यूज किया था, हमने यूज किया था ए क्यूब हैविंग ए थिकनेस ऑफ दिस। यहाँ पे अ सिलेंडर, यहाँ पे हम ये टर्म यूज नहीं करते, अ सिलेंडर हैविंग ए थिकनेस ऑफ दिस, हम यहाँ पे ये यूज करेंगे इट इज ए हॉलो सिलेंडर, ठीक है। तो हॉलो सिलेंडर के केस में हमारे पास थोड़ी सी चीजें अलग हो जाती हैं। हमारा जो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा, द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर विल बी इक्वल टू 2 pi r h, 2 pi multiplied by capital R plus small r multiplied by h। The curved surface area of this cylinder will be equal to like this, ठीक है। अगर मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूं, so it will be, यहाँ का एरिया क्या होगा? पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। यहाँ का एरिया क्या होगा? पाई r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। और ये वाला एरिया क्या होगा? दिस एरिया वाज इक्वल टू 2 पाई
r plus r multiplied by h. तीनों को ऐड कर दो, you will get the total surface area of the hollow cylinder. Next is volume of hollow cylinder. Volume is the easiest thing to calculate. Volume of the hollow cylinder will be equal to pi multiplied by r square minus r square multiplied by h. Volume is perhaps the easiest thing to calculate. So it will be pi. हाँ बोलिए सर इसमें कैपिटल आर और स्मॉल आर क्या है इसके अंदर? बेटा कैपिटल R is the outer radius and small r is the inner radius. ये कुछ इस तरीके से बना होगा. So this small r is this one and this capital R is this one. Capital R is the outer radius, small r is the inner radius. ठीक है सर? सर लेकिन अगर सीए से निकाल रहे हैं तो सर हमें 2 पाई आर प्लस बिग आर प्लस स्मॉल आर क्यों करने की जरूरत है? सीधा 2 पाई बिग आर एच क्यों नहीं? क्योंकि बेटा यहाँ पे एक और सरफेस बन रहा है ना. देखो यहाँ पे जस्ट ट्राई टू सी द टोटल नंबर ऑफ सरफेसेस हियर. एक अंदर वाला सरफेस भी तो बन रहा है ना यहाँ पे. एक ये वाला सरफेस तो एक ये वाला सरफेस भी तो एडिशनल क्रिएट हुआ ना. हाँ सर लेकिन वो तो पाइप के अंदर एम्बेड होगा तो हाँ अगर तो हम पाइप पाइप हाँ तो उसका भी तो एरिया कैलकुलेट करेंगे ना. जब आप टोटल सी जस्ट ट्राई टू विजुअलाइज हाउ मेनी सरफेसेस विल बी देयर. आप जब कर्व सरफेस एरिया की बात कर रहे हो तो आप जितने भी आपके पास सरफेस बने अंदर बने चाहे बाहर बने, आपको उसका एरिया तो कैलकुलेट करना पड़ेगा. से टोटल सरफेस एरिया का तो समझ आ गया, लेकिन फिर अगर हम पाइप का देखें तो सीएसए में तो सिर्फ मतलब बाहर का ही लेंगे ना. नहीं बेटा अंदर भी तो एक एरिया बन रहा है ना. वी आर गेटिंग ए सरफेस हियर आल्सो. इसको भी तो आप काउंट करोगे. ओके सर. ठीक है मतलब बेसिकली आप इस पूरे चीज को काउंट कर रहे हो. दिस इज अ थिंग ऑफ विजुअलाइजेशन. ट्राई टू थिंक इट वंस. इफ यू नॉट गेट इट आई विल एक्सप्लेन इट टू यू अगेन. I'll explain it to you again, but try to think over it once. ठीक है. So the curved surface area of hollow cylinder will be equal to 2 pi r capital R plus small r multiplied by h. इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि it will be curved surface area of outer part plus curved surface area of inner part. This will be basically कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ आउटर पार्ट, बाहर वाले पोर्शन का एरिया प्लस अंदर वाले पोर्शन के एरिया को आप जोड़ दो तो यू विल गेट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हॉलो सिलेंडर. ठीक है. द नेक्स्ट पार्ट विल बी वॉल्यूम दैट इज इक्वल टू पाई मल्टीप्लाइड बाय आर कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय एच. सो दिस वाज ऑल अबाउट द सिलेंडर. कोन की बात करते हैं. So the the curved surface area of cone is equal to pi RL. What is this L that I will tell you. The total surface area of cone is equal to curved surface area plus base area, which is equal to pi RL plus pi R square. So this will be pi R multiplied by L plus R. The volume of the cone is equal to 1 by 3 pi R square H. Now here this L is nothing but square root of r square plus h square. This L is nothing but square root of r square plus h square. अब यहाँ पे एक बात आती है और वो बात ये आती है बेटा, वॉल्यूम ऑफ द कोन इज 1 by 3 pi r square h. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज pi r square h. इसका मतलब जानते हो क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ the ratio of volume of cone divided by volume of cylinder is equal to 1 by 3. The ratio of volume of cone divided by volume of cylinder is equal to 1 by 3. So this is again a very important thing. 1 by 3 होगा या 3 होगा? 1 by 3 होगा ना बेटा. कोन छोटा है ना. कोन छोटा है ना. So this is again a very important thing that you should understand. वो एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है ऐसे आपसे ना पूछे,
आपसे क्वेश्चन ये पूछ ले, द वॉल्यूम ऑफ ए सिलेंडर इज से 1200 सेंटीमीटर क्यूब. Find the radius, find the height of a cone. और उसके बाद बोलते find the height of a cone whose radius is same as that of the this. Find the height of the cone whose radius and height are same as that of the cylinder. मैंने क्या बोला, क्वेश्चन आपके पास आया, द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर इज 1200 सेंटीमीटर क्यूब, फुल स्टॉप. फाइंड द हाइट ऑफ द कोन और फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोन whose radius and height are same as that of the cylinder. सर अगर हमें हाइट का पूछेंगे तो हमें रेडियस भी देंगे ना? हाइट का पूछेंगे तो आपको रेडियस भी देंगे. सो इस टाइप का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है. दैट द पॉइंट दैट यू शुड कीप इन माइंड, या आपसे डायरेक्टली रेशियो पूछ सकते हैं. सो द पॉइंट दैट यू शुड कीप इन माइंड इज द वॉल्यूम ऑफ द कोन, द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ द कोन एंड दैट ऑफ द सिलेंडर इज 1:3. Okay, so what we will do is we will stop here today. We are not going to do anything further. ठीक है, आज की क्लास में यहीं पे बंद करते हैं. और कल की क्लास में मतलब सैटरडे की क्लास, फ्राइडे की क्लास में we will do the questions and then we will move further. ठीक है, अगर